Hello everyone, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we were doing the chapter number 13, organisms and population, and in this chapter we discussed about the abiotic factors and how organism responds to abiotic factor. Today we will discuss about the adaptations, that how a particular organism is adapted to its environment. What are its adaptations? क्या क्या उसके पास ऐसे adaptations हैं that it can survive in a particular environment. Then how can you define adaptations? It is an attribute of an organism. It is an attribute of an organism, and that attribute can be morphological, it can be morphological, it can be behavioral, or it can be physiological. It can be physiological. So adaptation is an attribute of an organism which enables it to survive, and reproduce, in its habitat. जो उसको अपने habitat में रहने और reproduce करने में help करते हैं वो adaptations होती हैं. Adaptations can be of three types. They can be morphological. Adaptation can be behavioral. Adaptation can be physiological. So three type of adaptations are there which we are to learn one by one. Got it? Okay. So let's discuss one by one all the adaptations. कि किस organism में किस तरह की adaptation होती है, how it survive in its environment. So first adaptations are morphological adaptation. Now see, those animals who are living in desert, those plants who are living in desert, they have special type of adaptation. For example, camels' padded feet. Camel lives in desert, and to move in sand, it have padded feet. Okay. Cactus, Acacia, or other desert plant have leaves turn into spines. Why it is so? Why their leaves turns into spine? Because there is very less water in desert. If leaves से transpiration होगा, water loss होगा, तो उनकी body में water की scarcity हो जाएगी. That's why their leaves turns into spine. Then if leaves turns into spine, who will do photosynthesis? Photosynthesis will be done by the flattened stem. It is done by the flattened stems, which are known as phyloglade. We discussed about in the previous chapters. Okay, so these are some morphological adaptation. One more adaptation like sunken stomata in desert plant. Sunken stomata means stomata will be near to claws, and loss of water will be less from the stomata. That's why. One more is there, thick cuticle on leaf. Cuticle is a tough covering on the epidermis to prevent the loss of water from the plant. So these are some morphological adaptations in organism. Next thing is behavioral adaptations like migration उसके behavior में change हो रहा है. Some organisms migrate from the harsh environment to any other environment, and when favorable conditions come, they again come back to their original habitat. These are behavioral adaptations. So migration is behavioral adaptation. Suspend is also behavioral adaptation, means like some bacteria, fungi, and some lower plants have spores, and they spores remain in suspended stage. When favorable conditions are there, they start germinating. This is also behavioral adaptation. One more is there, desert lizard is there. It also have behavioral adaptation, means when summer is there,
bask in sun. When winter is there, it go to shade. Means in summer when its temperature, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती ना हम मैमल्स की तरह, तो क्या करती है, जैसे इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होने लग जाता है, कोल्ड फील होने लग जाता है, देन इट बास्क इन सन. जैसे इसको फील होता है कि अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, देन इट गो टू शेड. दिस इज ऑल्सो हर बिहेवियरल एडेप्टेशन. वन मोर बिहेवियरल एडेप्टेशन इज देयर, मीन्स चेंजिंग बिहेवियर. Burrowing in soil. Some organism, when there is high temperature above the land, they make burrow in the soil and they hide themselves. This is also behavioral adaptation. So both adaptations are completed. You can take screenshot. Then we'll start third adaptation, that is physiological adaptation. Third type of adaptation is physiological adaptation. Physiological adaptation. Physiological means there will be some changes, some adaptations which are in their biochemical mechanism, which are in their internal body. For example, some plants have special photosynthetic pathway. Desert plant have special photosynthetic pathway, and that pathway is CAM, which is known as CAM. Its full form is granulation acid metabolism. You studied about it in 11th class. Granulation acid metabolism, which enables, this pathway enable desert plant to close their stomata even during the day. Understand it? That enables the organism to close their stomata even during the day. This is CAM pathway, special photosynthetic pathway. Some other physiological, like we do shivering during winter. Due to shivering, heat is produced in our body and we feel comfortable. Sweating in summer, due to sweating, cooling is there in our body and हम क्या कर पाते हैं, समर से को टॉलरेट कर पाते हैं. So these are also physiological adaptation. One more important example of kangaroo rat. Kangaroo rat in North American desert. North American deserts. Now what it do? अब deserts है, scarcity of water is there, so it meet its requirement of water by internal fat oxidation. When fat will oxidize in its body, इसकी body में जब fat oxidize होगी तो by product है water. Water is a by product of that process. तो उस water से ही अपनी सारी requirement complete कर लेता है. One more thing you can write here. Meet requirements of water by fat oxidation. One more thing, it can concentrate its urine. Urine concentrate करने से क्या होगा? Minimum loss of water will be there in its urine. पूरी लाइफ में पानी नहीं पीता, इसका कम चल जाता है internal fat oxidation से. Got it? One more example. Have you ever been high altitude area like near Rohtang Pass in Manali or Mansarovar? Where is Mansarovar? It is in China occupied Tibet. जिस तिब्बत को चाइना ने अपना बना लिया, जिस एरिया को ये मेरा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, that is the area which is known as China occupied Tibet. Mansarovar is the place there. These both places are at high altitude. Then when we go there, we feel altitude sickness. This is very important question in your board exams. Altitude sickness. Now first question जो बनता है वो यही बनता है, what is altitude sickness? What is its symptoms? ओके, अब हमें हैबिट नहीं है ना इतने एल्टीट्यूड हाई एरिया पे रहने की, तो हमें क्या होने लग जाता है? वी फील वॉमिटिंग, वी फील नॉसिया, वी फील सफोकेटेड, हार्ट palpitations are there, fatigue. So you can write what are the symptoms? Fatigue, nausea, suffocation, heart palpitation. So these are some symptoms of high altitude sickness. अब होता क्यों है? We all are living at plane.
जब हम वहाँ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, वेयर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर, ऑक्सीजन थिन हो जाते हैं, ऑक्सीजन एयर थिन हो जाते हैं, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, वी फील दीज सिम्टम्स। ओके, लेट मी चेक वंस वीडियो, ऐसा ना हो वीडियो पॉज हो गई हो। ओके ओके, इट इज़ ओके। सो क्या हो जाता है, वी फील हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, अभी ये सब सिम्टम्स होने लग जाते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको तो ये नहीं होता है, हालांकि आफ्टर सम टाइम वी फील बेटर, हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं उस एरिया के, हम अडेप्टेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनको क्यों नहीं होती और हम इतनी जल्दी फिर कैसे अडेप्ट हो जाते हैं? व्हाट हैपन, आवर बॉडी गेट अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। क्या होने लग जाता है, हाई आरबीसी काउंट, हाई आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो होती है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन नॉर्मल मैन, नॉर्मल ह्यूमन। बट यहाँ पे जाने के बाद अप टू 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में ना हो। हाई ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ यू विल से मैम हीमोग्लोबिन की तो बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा है हमारी बॉडी में, पहले ही ऑक्सीजन कम एटमॉस्फेयर में, इसकी भी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाए तो हाउ इज इट पॉसिबल? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो वो ताकि तरीके से, ठीक है। सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एंड दीज आर सम यू कैन से हाउ वी गेट एडेप्टेड, कैसे हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। वहाँ पे जो नॉर्मली लोग रह रहे होते हैं उनका ऑलरेडी आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, ब्रीदिंग रेट हमसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो वहाँ एडेप्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस विच एनी ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है। ऐसे क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक कि जो फिश है विच इज लिविंग इन अंटार्कटिका रीजन वेयर टेम्परेचर इज बिलो 0, हाउ इट सर्वाइव देयर, वो कैसे रह पाती है? बिकॉज प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स बनती हैं इसके अंदर, फिश की बॉडी के अंदर सम प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड विच एक्ट लाइक एंटी फ्रीज प्रोटीन, जो उसकी बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज नहीं होने देती है उस टेम्परेचर में, उस एनवायरनमेंट में, उसको फ्रीज नहीं होने देगी, ठीक है। तो फ्रीज नहीं होने देगी तो वहाँ पर फिश प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएगी। बस यही तो क्वेश्चन था कि ऐसे वो सर्वाइव कर पाती है। ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ये टॉपिक ओवर है, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो इस टॉपिक के साथ ही हम इस चैप्टर के ऑर्गेनिज्म पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, बिकॉज चैप्टर का नेम है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म पार्ट इज ओवर, नाउ वी विल स्टार्ट पॉपुलेशन। Under this topic we will study 4 things, actually 5। population attributes पढ़ेंगे, सबसे पहले हम population की definition करेंगे, then population attributes, population growth, population growth models and life history variation, life history variation. So these topics are covered under the topic population. First thing you should know what is population. ठीक है, we rarely find any isolated organism, any single organism of a species. Generally we find them in a group. Generally, okay. So population is a group of organism of same species. ऐसा नहीं है अलग अलग species का. It is a group of organisms of same species living in a well-defined geographical area, living in a particular geographical area, that is known as population. How you will write it? What is population? It is a group of organisms of same species. Group of organisms of same species living in a well-defined area, living in a well-defined geographical area, well-defined geographical area. Got it? This is population.
लाइक किसी फॉरेस्ट में जाते हो, बहुत सारे टीक ट्रीज हैं, तो टीक ट्रीज की पॉपुलेशन, बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, मैंगो ट्रीज की पॉपुलेशन। व्हेन यू डूइंग वर्क इन लैब, तो एक पैट्री डिशम्स में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। लोटस प्लांट आर देयर इन अ पॉन्ड, बहुत सारे लोटस प्लांट हैं, दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ लोटस प्लांट। ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर पोटेंशियली इंटरब्रीड, दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, वो एक दूसरे से ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे शेयर कॉमन रिसोर्सेज, शेयर कॉमन रिसोर्सेज, और यू कैन से compete for common resources, compete for common resources. These are two characteristics of population, or you can say one more point is given in NCERT. Some students think कि जो asexual reproduction से organism develop होते हैं उनकी population नहीं होती, but it is clearly written in NCERT that individuals which grow from asexual reproduction, they are also a population, they are also a population. Got it? So you can take screenshot up to here, then we will do next thing. Done? So next is one term is given in your NCERT, that is population ecology, population ecology. Now what is population ecology? It is an important area of biology. It is an important area of biology which connect population genetics and evolution. So कैसे लिखोगे तुम? It is an important area of biology which connect population genetics, which connect population genetics and evolution, population genetics and evolution, that is known as population ecology. Got it? उसके बाद देखो some attributes of population we are to learn. A particular individual have no attribute, उसके कोई attribute नहीं होते, ठीक है, बट population के attributes होते हैं। कौन कौन से attributes हैं? First is birth rate. One by one we will discuss many attributes of population are there: birth rate, death rate, sex ratio, age pyramids, population density और population size. तो first is birth rate. What do you mean by birth? किसी particular individual के birth होता है, number of birth होता है कि उसने कितने birth दी, but population की birth rate होती है. You can say per capita birth. Birth rate means per capita birth. Per person कितने birth हुए हैं, that is known as birth rate. It is represented by small b. How? For example, NCERT में एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई फ्रूट फ्लाई है एक लैंड में, एग्जाम्पल क्या है, इन लैब 40 फ्रूट फ्लाइज आर देयर, 40 फ्रूट फ्लाइज, चलो हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, लोटस का लेते हैं, 20 लोटस आर देयर, ये गिवन है बर्थ रेट का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। 20 लोटस आर देयर इन 2021. Some more 8 lotus are added. Now it become 28 in 2022. तो इसकी बर्थ रेट कितनी हुई, कितना बर्थ हुआ, पर कैपिटा बर्थ कितना बर्थ हुआ, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, दिस विल बी इट्स बर्थ रेट। कितना आ जाएगा, 0.4 लोटस, सॉरी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यानी एक लोटस पर लोटस कितने ऑफस्प्रिंग बने एक ईयर में, दिस इज नोन एज बर्थ रेट। गॉट इट? अब हम करेंगे डेथ रेट। व्हाट इज डेथ रेट? सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन इज डेथ रेट। बर्थ रेट क्या था, पर कैपिटा कितने बर्थ हुए हैं, सेम ऐसे ही पर कैपिटा कितनी डेथ हुई है। सेकंड एट्रीब्यूट इज डेथ रेट, इट इज पर कैपिटा डेथ
represented by small d. NCERT is giving example of fruit fly that 40 fruit flies. फ्रूट फ्लाई कौन है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसके ऊपर मॉर्गन ने वर्क किया था एंड जिसकी लाइफ साइकिल होती है 1 वीक की. 40 फ्रूट फ्लाइज आर देयर इन अ वीक, इन लास्ट वीक. ठीक है, लास्ट वीक थी 40 फ्रूट फ्लाइज. इसमें से डेथ हो गई कितनी की? 4 की डेथ हो गई. कितनी बच गई? 36. नेक्स्ट वीक में कितनी फ्रूट फ्लाई बच गई? 36. अब डेथ रेट क्या होगी? कितनी की डेथ हुई पर कैपिटा डेथ कितनी में से हुई? तो 1 जा 10 जा 0.1 इंडिविजुअल्स, 0.1 इंडिविजुअल्स ऑफ फ्रूट फ्लाई पर वीक. डेथ ऑफ 0.1 इंडिविजुअल्स ऑफ फ्रूट फ्लाई पर वीक. एक वीक में 0.1 इंडिविजुअल की डेथ हुई. गॉट इट? थर्ड एट्रीब्यूट इज सेक्स रेशियो. ठीक है, इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल का एट्रीब्यूट नहीं है, ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है. इंडिविजुअल इधर मेल और फीमेल, बट पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है. सेक्स रेशियो मीन्स मेल टू फीमेल रेशियो, मेल टू फीमेल रेशियो. Like in a population, 100 individuals are there, out of which 40% are male and 60% are female. This is known as female. This is known as a sex ratio. So 3 attributes of population are done. You can take screenshot. Then we will do next attribute of the population. So, next attribute of population is fourth attribute, that is age pyramids. Age pyramid. Now, what is age pyramid? If अब देखो किसी भी पॉपुलेशन में एक ही एज के इंडिविजुअल नहीं होते हैं. सम आर बेबीज, सम आर चिल्ड्रन, सम आर अडल्ट, सम आर यू कैन से ओल्ड एज पीपल. ठीक है, तो पॉपुलेशन को हमने 3 एजेस में डिवाइड कर दिया है. प्री रिप्रोडक्टिव एज जो बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज विच कैन ड्यू रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज विच आर एल्डर पीपल, विच आर ओल्ड पीपल. ठीक है, तो अगर हम इस एज डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन के अगेंस्ट प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज एज पिरामिड. क्या बोला मैंने? इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे? इफ age distribution is plotted for population is known as age pyramid. Means percentage individual of a age, percentage individual of a particular age group, that is age pyramid. See, यहाँ लिख लेते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्रो रिप्रोडक्टिव एज. एक है रिप्रोडक्टिव एज, एंड वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. ओके, सो अब हम एक पिरामिड बनाते हैं. हियर व्हाट इज शोन इन दिस पिरामिड? प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल नंबर इज मोस्ट, रिप्रोडक्टिव वाला कौन से कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम है. इट मीन्स दिस पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग. इस तरह के पिरामिड को बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन. एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स हियर बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है बच रहे किसके? डेथ रेट के. सो दिस इज पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन. नेक्स्ट पिरामिड है कुछ इस तरह से बना रखा है एनसीईआरटी में. दिस पॉपुलेशन इज स्टैटिक. दिस पॉपुलेशन इज स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स फिक्स है, जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर है किसका?
तीनों ही ग्रुप का रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, स्टैटिक और यू कैन से स्टेबल पॉपुलेशन है, वेयर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज पीपल, reproductive age people and post productive age people. It is maximum in European countries like USA वगैरह, ठीक है, वो हाँ स्टेबल है पॉपुलेशन। नेक्स्ट टाइप इज this type of population is a declining population. It is a declining population because यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल हैं वो बहुत कम है, तो वो कम है तो फिर वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो पॉपुलेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। सो दिस इज डिक्लाइनिंग। इफ वी टॉक अबाउट शेप, तो इसकी शेप और इसकी तीनों की ही शेप डिफरेंट है, तीनों की ही शेप जो है डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल हैं उन सब का नंबर क्या है, डिफरेंट है। गॉट इट? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह से बेल शेप की शेप आती है, और यहाँ पर शेप जो आती है वो आती है अर्न शेप, एंड दिस इज जस्ट इसका बेस ब्रॉड है, ब्रॉड बेस, यू कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से लर्न कर सकते हो। सो दिस इज एज पिरामिड विच शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द पॉपुलेशन। गॉट इट? सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। Okay, so now we will do last attribute of the population, and that attribute is population density. It is a fifth attribute. Population density represented by capital N. टेक्निकली इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, अदरवाइज सिंपल पॉपुलेशन साइज है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है। पॉपुलेशन का मीनिंग यही नहीं है कि मिलियंस में नंबर हो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन किसी दो की भी हो सकती है। लाइक साइबेरियन क्रेन विजिट टू भरतपुर इन राजस्थान, ठीक है, बहुत ठंड हो जाती है जब उनके साइबेरिया में, तो वो यहाँ आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो अगर 10 बर्ड है ना भरतपुर में, तो वो उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी 10, उनका साइज हो जाएगा 10, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है किसी कल्चर प्लेट में, तो उसकी पॉपुलेशन का साइज हम बता सकते हैं। एंड पॉपुलेशन हमेशा नंबर में ही मेजर नहीं की जाती कि कितना नंबर है इंडिविजुअल का, इट कैन बी मेजर्ड इन बायोमास, इट कैन बी मेजर्ड इन बायोमास। सपोज कोई एरिया है, किसी लैंड पे 100 के करीब पार्थेनियम प्लांट है। पार्थेनियम कौन है पार्थेनियम? यू ऑल नो अबाउट इट। कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, इट इज अ वीड जो इंडिया में आ गई थी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, चलो इसके बारे में बहुत बातें हैं, उसको छोड़ो। पार्थेनियम जो है कैरेट ग्रास है, ये वीड है, अटैकी है, इन्वेसिव स्पीशीज है, एलियन स्पीशीज है, जो एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर से हमारे इंडिया में आई है। एक एरिया में इसके 10 प्लांट है, 100 प्लांट है, सॉरी, एक वहाँ पर बैंगन ट्री है, वन इज बैंगन ट्री। देन व्हाट यू विल से, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इसका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, तुम तो कहोगे मैं पार्थेनियम क्योंकि 100 है, नंबर ज़्यादा है, बट यहाँ पर हम बायोमास की बात करेंगे। हाउ कैन वी इग्नोर बैंगन जो हमें इतना सब कुछ शेड प्रोवाइड करता है और रेनफॉल में हेल्प करेगा, और बहुत सारे जो है बायोमास है इसका, कैसे इसको इग्नोर करते हैं 100 प्लांट पार्थेनियम को देख के। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बैंगन ट्री। अब पॉपुलेशन साइज को कैसे मेजर करते हैं, जो इकोलॉजिस्ट है वो कैसे काउंट करते हैं इतनी सारी पॉपुलेशन को, ठीक है। जैसे हमें फिश की पॉपुलेशन काउंट करें, कोई इकोलॉजिस्ट फिश की पॉपुलेशन काउंट करना चाहता है, पूरे सी में थोड़ा ना वो काउंट करता फिरेगा, पूरे पॉन्ड में, पूरी रिवर में थोड़ी काउंट करेगा कितनी फिश है। इट जस्ट काउंट अ कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड, कि उस कॉर्नर में कितनी फिश है, अकॉर्डिंगली ही कैन टेल दैट इस पॉन्ड में इतनी फिश हो सकती है। ऐसे ही जैसे टाइगर है, कोई भी वाइल्ड एनिमल है, अब फॉरेस्ट में पीछे पीछे घूमेंगे कि कितने टाइगर है, कितने वाइल्ड एनिमल है इस फॉरेस्ट में, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उनके पग मार्क से वी कैन यूज pug marks, also we can use ficus parrots of those animals, उनको हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये